More than 2 years ago, violence tore through Manipur, splitting communities, burning homes, and forcing thousands into relief camps. So many lives lost. Today, 28 months later, little has changed for those still waiting to return to their land. For the first time since the conflict erupted, Prime Minister Narendra Modi is visiting this state. President's rule was imposed here in February 2025. So, 28 months after the violence began and 8 months into President's rule, the Prime Minister will step into this wounded land for the first time. Across Imphal and Churachandpur, preparations are underway. Hoardings, banners, a show of welcome. Just last evening, the spaces were empty. By late night, the heart of Imphal was filled with posters and billboards. But inside the relief camps, life still looks the same, smells the same, of loss, of longing, of despair. This is a story of two camps in a land divided between the Meitei and the Kuki. On our way to Churachandpur, where the Prime Minister will make his first stop, we saw heavy security all along the route. Black patches fill the cracks and potholes, quick fixes for the VVIP visit. But some broken things take time to get fixed. This crucial road is a link between the hills and the plains. Meiteis cannot take it to the hills. Kukis cannot come down to Imphal. No amount of patchwork can cover up a divide this deep. So this is Mulvai Phei relief camp here in Churachandpur. A drive for almost 10-15 minutes uphill, and you come to this relief center. The moment I came in here, I was greeted by the smell of food, and I saw little children trying to hold a bucket in their head, moved to this kitchen, a makeshift kitchen, from where they were collecting the rice and dal and stock it up for dinner. So this is the kitchen of the relief center, and people out here are now busy collecting the food, their allocated food for the night. This community kitchen, or I should say the kitchen of this relief center, had been catering to more than 100 people who have been living here, family people who have been living here. This is how they make rice, and a rice which is meant for about 10-20 people, and there are similar such buckets, and you also have people like them who are now surviving on the burnt rice, literally burnt rice.
This is what you call the leftover of any katori, right? This is what is the leftover. And you probably won't eat this. But many children like them are left with no other choice but to eat burnt rice. This is Churachandpur. This is Manipur. And this is how life has been for thousands of people languishing in relief centers. Probably when you are watching this report, you would be watching this while having your 4-square meal, or probably you will have rice, paneer, something and non-veg if you're a non-vegetarian served on your dining table. But this is also your India, dear, where one Indian child is literally eating half burnt rice because there is nothing else left for him and many like him to quench their hunger. India is definitely the 4th largest economy. India has surpassed Japan in June 2025, and you only have Germany, China and US ahead of us. But in that 4th largest economy, this is how one of the many realities look like. I'm not trying to tarnish the image of India. All that I'm trying to say is, this is my country too, and this India is equally yours. So that's the leftover of dal. In the menu, they just have rice. For some, it's burnt rice and dal. And this is the leftover in the katori. This is the leftover in the bucket. And this is how children are feasting. See, burnt rice and then mix it with some dal. And they're happy. At least something is going inside their stomach. They will all sleep now? Yeah, they will sleep like this. It's done. Yeah, Done for the day. yeah. It's not even 5 p.m. No. Whenever they want, they will sleep. Oh. What is your name? Where are you from? I'm Suno. Uh, Suno Tinglampai. Okay. Can I speak to you? Yes. Since when are you here? Since from 2023. Since 23. Yes. How old are you? I'm 18. 18. Yes. Are you going to school, college? Yes. Where? Renkai Higher Secondary School. Renkai. Government. It's a government school. Yes. Okay. And where were you before? Suno Tinglampai. Okay. What's your plan like? What do you want to be now? What do you want to become? Aim in life. Yeah. I want to become army. Army. Yes. At the same time, this family, last week, their father is died, passed away. Just families. Yeah, Here? it's very sad. What happened to him? He's sick.
Could you take him to a hospital? No, we don't have a chance. He sleep at night and we could not wake him up in the morning. Was he suffering from something? Maybe. Are people here getting medical treatment? In the year 2023, 2023 we get it. But 2024-25, it's very hard. And in the beginning of the year, the Churachandpur District Legal Association, they have made a medical camp once for this year, not any other else. So, will you all go to meet the Prime Minister when he comes? No, Why? we will not go. Because if we go also, we don't think that many things will happen here. Life in this relief camp is very difficult for them. Look, last year, on the occasion of Christmas, we gave them meat. Till now, we can't continue to give them. It's very shameful for us also. So, we will go. You're not getting any support from the government? We are getting food and dal and oil. Food and oil. Food and oil and dal. So, rice, dal, and oil. Oil, yeah. Okay, that's it. Sometimes a small milk powder, sometimes a small soap. Okay. That's all. But the thing is that we can afford and we can still run it. We can let them study, and those who are in need of for their children, we let them search work for them, and we'll let them do that. Then they will earn. Their mother and their father, they will earn. Many people would go to welcome the Prime Minister. You won't go to welcome the Prime Minister? We don't have time for that. We won't welcome. We don't have time. They need to work for their needs. How will they go? The government is giving them food, but the thing is that food is not our life. It's only a part of our life. We need many things. At the same time, the children, they need clothes also. They need good food. And they need pencil, pen, textbook, everything, uniform, everything. The government is not giving all those things. Then what shall we do? Are you happy that the Prime Minister is coming after 28 months? I can't say. I can't say I'm happy, I'm sad. What will come, we don't know. If he is going to do a great thing for us, okay. After he do, we'll say, thank you, sir. Before he do, if he keep only in word, we'll just keep it as it is. But if it is implement everything, we'll say, thank you, sir. And thank you, sir, PM, we'll say. But if it is not, we'll just as it is. No change. Their life is no change. It's very difficult. They don't have any future. Their future is spoiled. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Families after families have almost the same story to share. The story of helplessness and despair. As I leave this room, the door would shut. And what I find very interesting is this written on this door. It says, "Do not open this door, danger point."
It is indeed a danger point, and the sarcasm of this sentence is what the reality is. If you open this door, the shame will be on India, for India to watch this reality. An India that celebrates fourth largest economy. This is the reality. People living inside relief centers, and they helplessly say, now that you have chosen not to watch us for the past 28 months, the fact that we are still languishing here, it's better. Do not open this door, because this, for you, is a danger point. Bye. Well, as I leave this relief camp, move on to another, I know once I step out of this relief center here, outside there would be several hoardings, banners of the Prime Minister welcoming him. Well, this is the welcome reality, where inside this relief center you find broken homes, people in despair and endless wait to go back to their land and unite with their loved ones. This is the welcome reality. Many hope everyone gets to see a taste this time. सबको दिखाओ दिखाएंगे। प्लीज प्लीज एकदम प्लीज This relief camp in Imphal is not just a shelter. It has become a home for hundreds who never imagined they would be here for years. They want to go back to their land, but all they have now is uncertainty and an endless waiting. कितने लोग हैं ये टोटल गवर्नमेंट रिकॉर्ड के फिगर से 778 है। कुल बच्चा उच्चा बूढ़ा बुढ़ी सब मिलाकर 778। एक साल पहले कितना था? एक साल का मतलब आपका 2024 में पकड़िए 625 ऐसा लगभग होगा। सर 2024 से लेके 2025 के भीतर ये नंबर बढ़ गया है। आपको राशन 400 ग्राम मिलता है चावल एक दिन का, एक आदमी के लिए? एक आदमी के, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या यूथ हो, कोई 400 ग्राम सुबह शाम का। और आपको मिल गया 80 रुपया एक दिन का। वो 80 और चावल से सब चलाना है। 80 रुपए और चावल उसी से चला रहा है। और ये जो दुकान है ये किसी ने इंडिविजुअली दिया? ये इंडिविजुअल किया है, कुछ कोऑपरेटिव से भी बैंक मिला है स्टार्टिंग के लिए। 20-25 हज़ार शायद मिला होगा। वही से शुरू किया है। अच्छा। और इसका एडवांटेज क्या है, जब हम लोग को कुछ दिक्कत आ जाता है यहाँ से हम लोग बाकी सामान उठा लेता है। अच्छा। क्योंकि जो पैसा जो है इन टाइम रिलीज़ नहीं करता है सरकार, डेट बैक कर रिलीज़ करता है। इसी कारण से दुकानें तो 80 रुपए रोज का रोजाना नहीं मिलता है? ना, रोज़ का नहीं, ये लोग 2 इंस्टॉलमेंट में देता है 15-15 दिन का। अच्छा। वो भी डेट बैक। जैसा कि आप पकड़िए अभी सितंबर का, आज 13 तारीख है, यानी कि 11 तारीख है, सितंबर का भी नहीं मिला है। तो ये सितंबर का 15 तारीख का आपको, अगस्त का मिला था? अगस्त का कल ही मिला, कल दिया है। अगस्त का कल दिया है सितंबर में? हाँ, सितंबर का 10 तारीख में दिया है। ये तो हो गया जैसे एक इंसान काम करता है, नौकरी करता है, 1 महीना काम करने के बाद उसको सैलरी मिलता है। आप लोगों को एक महीना जिंदा रहने के बाद आपको पैसा मिलेगा? वैसे चला रहा है। देखिए फिलहाल में तो वही में चल रहा है हम लोग। अभी सितंबर का तो शायद ये लोग, हम लोग के मुताबिक तो शायद ये लोग को एडवांस पेमेंट, यानी कि वही पैसा से हम लोग का
चलाना है, चाहे बच्चा पढ़ाओ वही पैसा से जाता है, चाहे बीमार हो वही 80 से, रुपए में आपको दवाई भी खरीदना है? 80 दवाई रुपए का में? एवरीथिंग A to Z वही से चलाता है हम लोग। अच्छा, दिन प्रति एक इंसान 80 80 रुपए रुपए मिलता है। मिलेगा। तो और बच्चा- उसमें उसका पढ़ाई, बच्चे का पढ़ाई सब कुछ, जो बच्चे को भी बीमारी हो 80 गया, मिलेगा। बीमारी है, सब कुछ हो जाता है उससे सर? कहाँ होगा वो तो, लेकिन चल रहा है ना। 2 साल तो हो चुका ही है, अभी तक सरकार से कुछ बोला कि आप लोगों को रहने की जगह कहाँ बना के देंगे? फिलहाल उसके लिए लोग बोलते हैं इंतज़ार करो थोड़ा, जब शांति आएगा तो ठिकाना में लगाएगा। और कितना इंतज़ार करेगा? वही तो हम लोग आपके द्वारा पूछता है कि हम लोग का गलती क्या है कि हम लोग को ऐसा जिंदा लाश एक बना कर हम लोग को बैठाया। ऐसा एक ही फैमिली हो, आपका 5 फैमिली मेम्बर हो, एक ही कमरा में रहना है, 7 फैमिली हो, एक ही कमरा में रहना है। जो छोटा आप देखा होगा कमरा 10 बाई 10 होगा शायद, हाँ। उसमें रहना है आपको। सर आप जाएंगे, मोदी जी आ रहे, प्रधानमंत्री आ रहे मणिपुर में, आप जाएंगे उनसे मिलने, उनसे बात करने? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे वो बात ठीक है, देर से सही ये लोग आया, जो लवारिस का सोच हम लोग जी रहा था वो तो मिटेंगे, लेकिन आने के बाद अगर वो हम लोग को समय देगा तब ना बात करेंगे। वो लोग हो गया बड़ा VIP, VVIP है, हम लोग को करीबन सिर्फ 2 मिनट या 1-2 सेकंड चाहिए, वो बात करने का समय भी नहीं मिलता। अगर उसका सच्चा दिल होता तो हम लोग को जो IDP में बैठा है वो लोग को उठाकर बैठकर 2 घंटा या 1 घंटा बात करेगा तब ना हल निकलेगा। तो लोग आएगा चला जाएगा, बात तो वही रह गया। वो क्यों नहीं सकेंगे? वो सब भारत का प्रधानमंत्री जी है, अगर वो चाहे तो एक ही दिन में ये मामला सॉल्व कर सकता है। नहीं तो अभी कभी कभी तो हम लोग को ये आश्चर्य होता है कि हम लोग एक भारत का नागरिक है या नहीं। ये सवाल तक हम लोग को उठ रहा है। ऐसे नहीं। हम लोग को भी तो जलन होता है, जैसे कि ज़िंदगी जो साउथ इंडिया में जी रहा है पीसफुली को एग्जिस्टेंस, वो देखकर हम लोग को जलन हो रहा है, क्योंकि हम लोग का गलती किया है कि जो हम लोग को ऐसा सज़ा मिल रहा है अभी तक। हमारा आपको चैनल के द्वारा हम लोग को रिक्वेस्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वो आएंगे तो कैसे भी कर शांति अमल करना है दोनों संप्रदायों को। ये बात नहीं है कि वो मैतेई समाज का या कुकी समाज का, वो बात नहीं, दोनों समाज को सीधा लाना है। अगर हम एक बोलिए कि सेंट्रल इंडिया में हम जन्म लेता, यूपी में जन्म लेता या गुजरात में हम जन्म लेता, क्या हम ऐसे तरह रहेंगे? नहीं, वो एक ही हफ्ता में सॉल्व हो जाता। ये बात है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट का आदमी हो गया, ये नहीं सोचेंगे, बोलने से भी नहीं होता है, सोच निकल जाता है। आप लोग आएंगे बोलेंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन सोच तो सोच है ना, वो ऐसा होता है। अरे देखिए ना, कितना बच्चा के आँख से आंसू आए, कितने बूढ़े लोग के आँख से आंसू आए, वो आंसू कुछ मूल्य नहीं है क्या? है कि नहीं? ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया, द रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी का 4 बच्चा है, किसी का 5 बच्चा आपके है। रूम में कितने लोग रहते हैं? हम लोग के रूम में 5 विद फैमिली मेम्बर, हम लोग 5 आदमी हैं। किसी का 7 है, किसी का 9 है। सो ये तो एक, आई शुड से अगेन, ये इट्स ए व्हाट टू से, अ ब्लैक हिस्ट्री दैट इंडिया क्रिएटेड। व्हाई आर वी सफरिंग टिल टुडे? रिलीफ का मतलब क्या है? इट्स ए फॉर शॉर्ट पीरियड। ये अभी हम लोग को रिलीफ नहीं है, जो एक जेल की तरह हम लोग को बैठाया हुआ है। टू सर्वाइव ओनली बाय 2400 पर मंथ, बेयरिंग ऑल द एक्सपेंसेस, मेडिकल हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, बच्चा का पढ़ाई हो, एजुकेशन हो या कुछ। सो हाउ कैन वी बेयर इट? तो चलो मानते हैं, अगर नहीं होता तो दे दो जहर, हम लोग मर जाएंगे। ऐसे नहीं बोलते सर, ऐसे नहीं तो शूट एंड साइड ऑर्डर दे दो, हम लोग को मार दो। नहीं, ऐसे नहीं बोलते सर। So this is a trade center here in Imphal, and this is my 3rd visit to this same trade center over the past so many months. So it's been over 24 months, and count June, July, August, September. So it's been about roughly 28 months
since this trade center came up as a relief center for people who had left their homes in Churachandpur, in Kangpukpi, in Modbung, and they have come here. You know the biggest tragedy what it is? There is a generation out here which is growing old and older day by day. There is a generation which is born here, and there is a generation that would be born here in the same relief center. That's the biggest travesty. That is the biggest travesty. Look at these faces. But they cannot really go back to their homes because of the hostility which has survived for over 24 months. And that is the reason people off-rooted from their own land, scattered here, there, who became IDP, internally displaced people, in their own land, a refugee in their own land, they have taken shelter here. You know, these... अभी 28 मंथ्स हो गया 28 मंथ्स 28 मंथ्स हो गया, कोई वापस नहीं जा पाया, किसी को घर नहीं मिला, एटलीस्ट इस जगह में। आपको कोई घर देने की वादा किया है सरकार? हाँ, सरकार तो नहीं, कहाँ देगा? देना होने से तो कब से देकर हम लोग अपना अपना सेटल हो जाता था। अभी तक कुछ इसका प्रॉब्लम ही नहीं है देने के लिए। सरकार का हार है ना, मतलब क्योंकि अभी तक हम लोग जा नहीं पा रहा है। ये लोग बोल रहा है जाने के लिए रास्ता तो क्लियर करेगा, मूवमेंट हो जाएगा। आज तक कोई जा नहीं सकता है, तो हम लोग जैसा मामूली कैसे जाएगा? अभी तो हम लोग किसका कंप्लेन करेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर पीआर है, तो हम लोग किसका कंप्लेन करेगा? आज तक हम लोग यहाँ पर ही रहता है, जो थोड़ा सरकार ने दिया वही खाकर रहता है। हो जाता है उससे? कहाँ हो जाएगा? आजकल में जो सामान सब दाम ही ज़्यादा है, तो कोई कुछ नहीं सकता है ना। आपको मालूम है प्रधानमंत्री आ रहे हैं? हाँ मालूम है, सुना है। आकर भी क्या करेगा हम लोग के लिए? तो हम लोग को मामूली है, हम लोग क्या करेगा? हम लोग के लिए क्या कर देगा प्रधानमंत्री आकर? कुछ नहीं करेगा ना। मुख से खाली बोलेगा, ज़बान खाली बोलते रहेगा उन लोग, लेकिन करना तो कुछ नहीं करेगा। कितना दिन तक हम लोग यहाँ में ये केम में हम लोग पे रखेगा? 2 साल के बाद या 28 दिन के बाद वो आ रहा है ना, वो तो इलेक्शन के लिए आ रहा है ना। हम लोग के दुख के लिए तो एक बार भी उसको ज़बान में मणिपुर के लिए एक भाषण भी नहीं बोला है, आज तक नहीं बोला है। वो आ रहा है तो अपना मतलब के लिए आ रहा है। अमित शाह जी आए थे जब इलेक्शन के टाइम, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर के दोस्त थे, मित्र हैं। हाँ हाँ, मित्र होने से ये लड़ाई आज तक ख़त्म होकर हम लोग के आने जाने सब रास्ता क्लियर होगा ना। आज तक क्लियर नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री को सुनने जाएंगे? नहीं, हम लोग को उतना पसंद नहीं लगता है। वो लोग तो ऐशो आराम रहता है। अभी हम लोग के ना यहाँ पर दुख में रहता है, बहुत दुख है ना हम लोग को। सब हम लोग के फेस में स्माइल होता है, अंदर में बहुत दुख होता है। सोचता है यहाँ पर हम लोग के यहाँ में रहने में कितना आदमी बीमार होकर कितना आदमी गुजर गया, बहुत आदमी यहाँ पर। कोई सरकार हो, पीआर हो, कोई नहीं समझता है। अभी सब आजकल में हम लोग के उम्र ज़्यादा हो गया, बीमार कितना शरीर में आता है, कोई नहीं हम लोग को हेल्प करने वाला नहीं है, कोई नहीं हम लोग को देखने वाला नहीं है। खुद अपना से जैसा तैसा करो, दवाई पानी खाओ, ऐसे ही है। क्या प्रधानमंत्री को क्या कहेगा? सरकार कुछ कह रही है कि कहाँ पे आप लोग को घर देगा, कुछ देगा कि नहीं देगा? खबर में तो सुनी हूँ, न्यूज़पेपर में हम लोग को मतलब दिसंबर या मार्च के अंदर ही अंदर हम लोग को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन
मुझे यहाँ विश्वास नहीं है, क्योंकि शिफ्ट करने में थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि सुल्तानपुर में तो अभी कैसे जाएंगे हम, मतलब जाने के हम लोग जाना चाहे भी जा नहीं सकते ना। आपको मालूम है प्रधानमंत्री आ रहे हैं? हाँ, मुझे मालूम है। कैसा लग रहा है? अभी तो मुझे खुशी तो नहीं हो रही है, क्योंकि उस समय आया होता तो हमारे मन में थोड़ा कुछ तो खुशी हो जाता। देखिए, फ्लड होते समय दूसरे स्टेट में पहुंच ही जाता है भागकर, और फॉरेन कंट्री में वो जाता है, फिर भी हमारे आग लगते समय तो एक बार भी उन लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं आया है। इसलिए मेरे मन में उसका दुख अभी भी है। उस समय वो आकर हमें मतलब उस समय थोड़ा कुछ हमें शांत दिला दे, हमारे मन को थोड़ा हल्का करवा ले हो तो हमें भी थोड़ा क्या कहूँ, अच्छा शायद अच्छा लगता। लेकिन अभी तो 3 साल होने वाले हैं। अभी आते समय मेरे मन में एक पॉलिटिक्स खेलने के लिए आए हैं, ऐसे सोचती हूँ मेरे मन में। क्या पॉलिटिक्स? अभी वोट आने वाले हैं ना, अभी वोट नज़दीक आ रहा है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर हमें प्यार से हम लोग को प्यार में नहीं आ रहा है। वो लोग हमें क्या कहूँ, आंखों में धूल झोंकने या क्या कहें, मुझे हिंदी में ज़्यादा भी मालूम नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे लगते हैं मेरे मन में। आया होगा अपने दिल से, सच्चे दिल से हमें प्यार हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में उसने हम लोगों को प्यार है ये तो मैं मतलब बिलीव नहीं करती। उस समय कितना दर्द था हमारे मन में, आज भी है मेरे मन में दर्द है, लेकिन हम उस समय उन लोगों ने अच्छी तरह से गवर्न किया हो तो हम घर छोड़ के नहीं आना था, क्योंकि हम लोग एक डीसी कम्प्लेक्स था, उसमें हम मैतेई लोग सब एक जगह पे इकट्ठा करके प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। लेकिन घर में रहते समय उन लोगों ने प्रोटेक्ट किया होता तो हम नहीं आते। उस समय क्यों उन लोगों ने प्रोटेक्ट नहीं किया हमें? ये इस समय ऐसे भी नहीं होना था। उस समय उन लोगों ने अच्छी तरह से हम लोग प्रोटेक्ट करके रखा होता तो ऐसे भी घटना नहीं घटी होती। उस समय उन लोगों ने प्रोटेक्ट नहीं किया। मोदी जी आएंगे आपके इधर पे? पता नहीं, वो तो हमें यहाँ आएगा या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मोदी जी हमारे मणिपुर में आने वाले ये तो हमने खबर में सुने हैं, और सुल्तानपुर में जाएंगे ये भी सुने हैं हमने। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम रिलीफ कैम्प में आके वो भी मतलब एक प्रधानमंत्री होके हम लोग के साथ भी बातचीत करके बुला के नहीं, वो आके हमारे एक रिलीफ कैम्प में आके भी मिल सकते हैं ना। हम लोग विक्टिम लोग को, आईडीपी लोग को, हम ऐसे रहते समय हमारे मन में क्या होगा? हम अपने घर में नहीं, यहाँ पे कैसे हम लोग घर में कैसे रह रहे थे, आज कैसे हो गया है? बोलने का भी हमारे ऐसे बोलते समय आप लोग हम लोगों के साथ इंटरव्यू करते समय मन में रोने का मन होता है, घुटन पड़ता है हमें। और ये भी कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी हूँ, पढ़ते समय देखो ना, हमारे जो मैतेई मरते समय किलिंग, और अनदर जनजाति मरते समय मर्डर और किलिंग का मतलब क्या है? जो इंटरव्यूअर, जो जर्नलिस्ट है, उन लोगों का मुझे गुस्सा है, क्योंकि रिपोर्ट लेने चाहे तो अच्छी तरह से लीजिए, हम लोग को लायर मतलब लाइंग मत कीजिए, हम लोग को झूठा साबित मत कीजिए। हम भी विक्टिम हैं, हम भी वो लोग की नहीं, लेकिन मुझे प्यार है उन लोगों का भी, मतलब हम मिलजुल के रह रहे थे उस समय। मुझे किसी का भी नफरत नहीं है, मेरे भी दोस्त हैं वहाँ पे, मेरे जनजाति के नहीं, उन लोगों का भी जनजाति मेरे दोस्त था। मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, ये ब्लेम करना चाहती हूँ कि सरकार ने अच्छी तरह से गवर्न नहीं किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दर्द से घुटन से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये भी कहना चाहूँगी हमारे बच्चे का मतलब ज़िंदगी में क्या होगा। You know what? What has changed in the past 24 months? Last time when I had come, I'd seen more of clothes hanging here and there. Now I get to see these white shirts,
These are all part of school uniform. स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म है, सफ़ेद शर्ट है, 1 2 3, यानी स्कूल में बच्चे यही से जा रहे हैं और वापस घर नहीं रिलीफ सेंटर में आ रहे हैं। यह है उनकी किस्मत। जब 24 महीने पहले मैं आया तब शायद ये दुकान नहीं था, कारोबार नहीं था, अभी कारोबार बन गया है। ज़िंदगी रिलीफ सेंटर में एक एक्सेप्टेड ट्रूथ बन गया है और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या है उनकी गुनाह, क्या है उनकी गलती और किसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़। प्रधानमंत्री आएंगे 24 महीनों के बाद, 28 महीनों के बाद, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन सबका सवाल ये है, प्रधानमंत्री तो इस रिलीफ सेंटर में नहीं आएंगे, तो शायद उनकी कहानी उन तक ना पहुँचे। और हमारी कोशिश इतनी सी है कि उनकी कहानी उन तक पहुँचे। जो प्रयास 24 महीना 28 महीना पहले शुरू किया, वो प्रयास अभी भी जारी है कि इनकी कहानी उन तक पहुँचे। जो बेज़ुबान होके बैठे हुए हैं, उनकी ज़ुबान से कुछ शब्द निकले और वो ज़ुबानी उन तक पहुँचे, क्योंकि इनकी आंसू उन तक तो पहुँचे कि नहीं पहुँचे मालूम नहीं, ये आवाज़ उन तक पहुँचे, ये रिपोर्ट उन तक पहुँचे, सब तक पहुँचे, ये देश के हर एक लोगों तक पहुँचे। क्योंकि इस प्रांत में, इस रिलीफ सेंटर में और बाकी जगहों पे भी, आप चूराचांदपुर में देखिए, आप कांगपोकपी में देखिए, जहाँ पे भी आपको रिलीफ सेंटर दिखेगा, उस जगह पे लोग इतने से सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, क्या हम इंडियन नहीं हैं? अगर इंडियन है तो ये प्रॉब्लम हम लोग क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? हम लोग विश्व में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसी देश के लोग अपने घर वापस नहीं जा सकते। ये बच्चे ये उनकी गलती नहीं है कि उन्हें इसको मैदान की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये उनकी गलती नहीं है कि उन्हें ये खुला जगह मैदान जैसा लग रहा है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे जो मैदान उनके थे, उसी जगह से बेघर होके इस रिलीफ सेंटर में आना पड़ा। और इसी रिलीफ सेंटर में किसी कॉर्नर में स्कूल, किसी कॉर्नर में रसोई, किसी कॉर्नर पे सोना, किसी कॉर्नर पे नहाना, किसी कॉर्नर पे बर्तन धोना और किसी खुले जगह पे खेलना। ये है ज़िंदगी। और मैं एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार ये कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसमें ना कोई मेरी जीत है ना हार कि प्रधानमंत्री आएंगे 2 साल बाद, 24 महीने बाद, उनका मर्जी जब आए चाहे वो आ सकते हैं, वो आए नहीं उनका मर्जी, वो आ रहे हैं उनका मर्जी, लेकिन ये हमारी मर्जी है कि this is the only journalism that you will practice, we will practice, and we will ensure voices of the people reach to you, no matter how much you despise them, no matter how much you try to block them, voices will reach you. Here in Imphal, along with Pui, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT. Bye. Bye bye. Bye.